Okay, today's main topic is accounting treatment of goodwill in case of retirement of a partner. Yes, in case of retirement also we will have to deal with the item or the account of goodwill. See, sometimes goodwill which is available in books, which is known as old goodwill, which is even termed as goodwill shown in books or which appears in books, ऐसे terms और disclosed in books, ऐसे वाले words इसके लिए use होते हैं. This goodwill is known as old goodwill. Always this old goodwill we will have to write off. Books में से हटा देनी है. It has to be written off and distributed to old partners in old ratio. We have understood this. Now in this case, old partners की जगह पे हम word use करेंगे all partners. Even the partner which is retiring has to bear this out, or he will also bear this amount out. Whatever goodwill is shown in the books, that will be distributed among all partners. All. In which ratio? Old ratio. That means normally goodwill का बैलेंस डेबिट होता है. तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? गुडविल को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एज द कंडीशन में बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल. This way, always all goodwill will be written off or removed from. Words कौन से use को है? Shown in the books already or appears in the or they are disclosed. Means this type of goodwill is which goodwill? Old goodwill. Now, what else then? Now, the partner who is leaving the firm. To this partner, the partners who are continuing and gaining. The partners, I am making it very clear, the partners who are continuing and gaining, these partners will compensate in the form of goodwill amount, will give or compensation in form of goodwill amount to the partner who is retiring or whose death has occurred. So in this case also, so this way, this treatment has to be done with which type of goodwill? New goodwill, which will be valued now, valued at time of retirement or death. The goodwill which is valued at current time, at the time of retirement of death, such goodwill is known as which goodwill? Such goodwill is termed as new goodwill. And this new goodwill is the amount which is to be brought in by partners who are gaining and given to the partner who is sacrificing. Always in this case, entry तो हम ऐसे ही पास करते हैं. Gaining partner account debit to sacrificing partner. यहाँ पे समझने की बात इतनी है कि गेन कौन करेंगे. नॉर्मली गेन कौन करेगा? गेन करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. जो कंटिन्यू करेंगे आगे उनको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगा. और सेक्रीफाइस कौन करेगा? हु विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स? दोज हु आर रिटायरिंग और हुज डेथ हैज अकर्ड, वो जा रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस करें, उनको पैसे मिलेंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट होगा. जिनको गेन आगे ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट में मिलेगा तो वो गेनिंग पार्टनर्स हैं. They will compensate them. Okay, this is also is known as an compensating adjustment. So normally entry in this case also is continuing partners. अगर मैं exact word use करूं तो continuing partners account debit, continuing partners capital account debit to retiring partner or the partner whose death has occurred or deceased जैसे बोलते हैं, partners capital account. Okay, continuing partners capital account debit to retiring or the partner whose death has occurred. कौन सा रेशियो? वही गेन, ये गेन प्रपोर्शन में और ये जितना इसका हिस्सा है उतना उसको मिनिमम अमाउंट मिलेगा. द अमाउंट which is paid to the as goodwill to the retiring partner, he has to
he has right over it in the form of compensation. That you have to see. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, तो जो ओल्ड गुडविल होगी बुक्स में, सिंपली सब पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स ऑलरेडी राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जो न्यू गुडविल अभी वैल्यू करेंगे उसमें प्रोपोर्शन निकालेंगे, जितना पार्टनर जा रहा है, जितना उसका हिस्सा है उसको पूरा वो अमाउंट उसको मिलेगा, तो उस जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, उसको पैसे मिलेंगे। और कौन देंगे, जो गेनिंग पार्टनर। एंट्री ऐसे ही होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सेक्रीफाइसिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल्स ऑफ इट। इसके प्रैक्टिकल्स को समझें। ओके, सी textbook questions only I am taking so that you can understand or connect to it very nicely. Give journal entry of goodwill for the following. It is given to you. Question number 4 of your textbook. Okay, within that short questions are there. First one. Akruti, Prakriti, Sanskriti are partners sharing profit and loss in 5:3:2. And who is retiring? Third partner. Sanskriti retires. At the time of retirement of Sanskriti, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, 30,000। ये वैल्यू निकाली है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं, आज के दिन ये वैल्यू हुई है, तो ये गुडविल कौन सी होगी? दिस गुडविल इज नेचुरली विच वैल्यू? न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। दिस इज सिंपली इन दिस केस फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रेशियो एंड हाउ इट विल बी क्लियर्ड ऑफ। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा न्यू पीएल। ओके, न्यू पीएल है, तो न्यू पीएल फाइंड करने के लिए देखो, ये ओल्ड रेशियो इज गिवन, गेन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स ड्रॉप डाउन के हिसाब से न्यू। पहले हम लोग सिंपली लिखें ओल्ड रेशियो कितना है। ओके, तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूं ओल्ड रेशियो कैसे है। आकृति, प्रकृति, संस्कृति। नॉर्मली ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। गेन का कुछ नहीं है और संस्कृति रिटायर हो रही है, तो उसको ड्रॉप करेंगे। देयरफॉर न्यू पीएल क्या हो जाएगा, 5:3। एंड एज देयर इज नो डिफरेंस, सो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, विच इज इवन इज इक्वल टू गेन। This we have already understood this very well, this type of point. Now that means gain ratio is 5:3. Let us, this is step 1. Step 1, always we will find out what is gain. Gain is, that means 5:3. Step 2, you need to know what is Sanskriti's share. Sanskriti's share in goodwill. संस्कृति का शेयर कितना होगा? टोटल फॉर्म की 30,000 है। संस्कृति का वैसे शेयर कितना था? 2/10 है ना, इधर कितना है? 2/10। तो इज हर शेयर वी विल फाइंड आउट 2/10। तो दैट मीन्स शी नीड्स टू बी गिवन 6,000 रुपीज एज गुडविल। अब ये 6,000 रुपीज कौन पे करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। तो वो दोनों पे करेंगे कौन? आकृति और प्रकृति इन प्रपोर्शन ऑफ 5:3। 6,000 को 5:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5/8 एंड 3/8 याद रखना, 5/8 3/8, 3,500 एंड 2,250 का अमाउंट आएगा। ये इन्हीं में 5/8 3/8 हो जाएगा। ओके, अमाउंट मिल गया हमको। अभी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए वही जर्नल एंट्री का जैसे सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं ना, ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके, कैसे एंट्री पास करेंगे? आकृति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रकृति's कैपिटल, ये पे कर रहे हैं तो इनको अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और संस्कृति को पैसे मिल रहे हैं तो संस्कृति का क्रेडिट टू संस्कृति's कैपिटल अकाउंट। संस्कृति को 6,000 मिलेंगे, उसका क्या अकाउंट? क्रेडिट। आकृति पे करेगी 3,750। ऐसे ही प्रकृति भी पे करेगी 2,250। ओके, बीइंग संस्कृति शेयर ऑफ गुडविल पेड बाय आकृति एंड संस्कृति एंड प्रकृति इन गेनिंग रेशियो। विच रेशियो? गेनिंग रेशियो। Simple it was. Okay, let us move ahead. Go to next question of textbook. Okay, second number. Here you check out. X, Y, Z are partners sharing PL in equal proportion. Goodwill
appears at 42,000. अभी जो appear कर रही है गुडविल, ये कौन सी गुडविल होगी? दिस विल बी नोन एज ओल्ड. हमने पहले ही डिस्कस किया आज. हाँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड. अब भी वैल्यू निकालिए तो ये कौन सी गुडविल हो जाएगी? इसको बोलेंगे न्यू गुडविल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल their ratio. First step, always you should find out. Nothing about gain is mentioned. We know. Here I draw a line for solution. See, old ratio is given to you of x, y, z equal, that is 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Nothing is mentioned for gain. X retires, ये drop हो जाएगा. So new also will be, new PL also will be 1:1. बोलना नहीं, 1:1 means equal. 1 by 2, 1 by 2 हो जाएगा आगे जाके. Now when old is equal to new, it will be equal to gain. तो gain ratio also will be 1:1 for both. So step 1, our gain is ready. Okay. Now step 2, we need to find out that what will be the 42,000's distribution. Old goodwill. First thing, old goodwill 42,000 will be distributed among, क्या करना है हमको रूल पता है, will be distributed among all partners. Which ratio? Old ratio. तो 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल है तो डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं हम लोग. तो हर एक पार्टनर को, इसका मतलब कितना? 1:1:1. 42,000 है तो हर एक को 14,000 रुपीज बेयर करना पड़ेगा. सेकेंड, न्यू गुडविल के केस में, न्यू गुडविल टोटल फर्म की कितनी है? 1,20,000. देयरफॉर किसका शेयर निकालना है? जो रिटायर हो रहा है, एक्स का शेयर, एक्स शेयर इन गुडविल 1,20,000 कितना होगा? 1/3 हिस्सा होगा इसका, 1/3. सो एक्स का कितना हिस्सा हो जाएगा? 40,000. नाउ दिस 40,000 एक्स को मिलेंगे, पर एक्स को देगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स. दिस ही विल गेट फ्रॉम y and z. इन विच रेशियो? 1:1. सो 20,000 y देगा और 20,000 z देगा. Am I clear? Now let's go for journal entry. Here itself I am just simple सा वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट यू आर सपोज टू यूज. आपको आता ही है वो फॉर्मेट. फर्स्ट, ओल्ड गुडविल जब भी होगी, पहला स्टेप भी यही करना, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. कितना है ये? 42,000 है ओल्ड गुडविल, और हर एक को 14 लिखेंगे. क्या? बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. ऑल पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड. लेट अस गो फॉर सेकेंड एंट्री ऑल्सो. सेकेंड एंट्री किसकी पास करेंगे? यस, न्यू गुडविल की. किसको? वाई पे करेगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. जेड भी पे करेगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. एंड एक्स विल रिसीव टू एक्स कैपिटल अकाउंट. ही विल पे 20, सेकेंड पार्टनर ऑल्सो 20, टोटल 40. Gain ratio. Okay, this is distributed in which ratio? Gain ratio. Mind it. Here, all partners, old ratio. So this was basic thing to understand. जब गुडविल की एंट्री आएगी तो मेन क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा. लेट्स कंटिन्यू विथ इट. अंडरस्टैंड सम अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. एक दो और देख लेते हैं. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, हाउ मेनी पार्टनर्स? LMN, टेक्स्ट बुक का ही 3 है. LMNO आर पार्टनर्स 5433. L retires, first partner on this date. After his retirement, goodwill appears.
So this will be which goodwill? This will be known as old goodwill. Write off कर देंगे all partners, old ratio. Okay, new goodwill, the new profit and loss ratio of M and O is this. When old is not equal to new, it will be definitely not equal to gain. तो हमको गेन रेशियो इधर फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम गुडविल की एंट्री को सक्सेसफुली कर सकेंगे. सो इन दिस केस you must see that first we find out gain ratio. गेन रेशियो कैसे हर बार कैसा आता ही है. गेन इज का फॉर्मूला आपको सबको न्यू माइनस ओल्ड, दोनों अवेलेबल है. ओल्ड भी अवेलेबल है, न्यू भी अवेलेबल है. ओके, एल को ड्रॉप कर देंगे आप वैसे भी. हियर गेन कौन कौन करेगा? सबसे पहले एम, फिर एन और ओ. 3 पार्टनर्स हैं जिनको है. तो न्यू कितना है? 3, 4, 5. सो 3/5, 1/5, 1/5. ये न्यू है. माइनस ओल्ड, इधर देखो काउंट सबका होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. टोटल 15 डिनोमिनेटर बनेगा. एम का कितना होगा? 4/15. एन का 3/15 और ओ का 3/15. In this way if we move, so gain ratio जब हम यहां से निकालते हैं तो हमको मिलेगा कि M का gain ratio is 5/15. Okay. And here it comes to 0. Here also comes to 0. In short, full amount is taken up by here. He is only having positive. The complete amount is gained by M. तो full goodwill will be paid by M. N और O को तो कुछ गेन हो रहा नहीं है, तो वो गुडविल का अमाउंट पे नहीं करेंगे. जितना भी शेयर होगा, कितना होगा? चलो, दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप. किसका क्या ढूंढना है अपन का? एल्स शेयर इन गुडविल. एल का गुडविल में शेयर कितना होगा? टोटल गुडविल तो हमारी फर्म की 90,000 है. एल का हिस्सा कितना है? 5/15. ओके, सो सिंपल है ना बहुत. एल का कितना है? 30,000. दिस फुल 30,000 विल बी पेड बाय हुम? एम. पूरा एम पे करेगा क्योंकि एम ने पूरा पैसा, उसका हिस्सा गेन किया है. चलो जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे. सिंपल सी. फर्स्ट ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है. all partners, old ratio. 75,000 की ओल्ड गुडविल है ये वाली. 5, 4, 3, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 25,000, 20,000, 15,000, 15,000 respectively. Old goodwill distributed to all partners, old ratio. Now, new goodwill. पूरा M को देना है तो M को पे करना है तो M डेबिट. M's कैपिटल अकाउंट डेबिट. To whom? L's कैपिटल अकाउंट 30,000. ये पे करेगा और L रिसीव करेगा. गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, या गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. एज यू फील कंफर्टेबल, यू कीप इन माइंड. ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 2 दिन साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा लगता है. यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट मोर इजिली. ABC 3 partners, B retires at the time of retirement. Goodwill of the firm is valued. तो ये कौन सी गुडविल होती है? न्यू. And the new profit and loss of A and C is decided this. सिंपल सा सम है. जब A और C का न्यू रेशो, when, वही सेम बात बोलूंगी. यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा? नेचुरली इक्वल. ओके, मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे यही बात समझनी है कि यहाँ ओल्ड बोला नहीं है तो ओल्ड विल बी इक्वल. न्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू, तो गेन निकालना इजी. गेन इज इक्वल टू, ये तो चैप्टर 3 से ही कर रहे हैं. ओके, और कौन? नेचुरली बी रिटायर हो रहा है तो बाकी ए और सी बचेंगे तो वही गेन करेंगे. ए और सी
न्यू है 7/9, 2/9 माइनस ओल्ड तो बहुत इजी है 1/3 इक्वल है 3 है ओल्ड में। 3 है ओल्ड के टाइम पे, बस ये ट्रिक है, याद रखना है 1:1:1 तो 1/3 1/3। इफ यू पुट दिस वे you get here gain ratio of A 4/9 and very interestingly here for C -1/9. That means A is gaining, but how many parts? 4 parts. But C is also sacrificing. Under this situation जितना C sacrifice, जैसे एडमिशन में किया था, इधर भी वही उल्टा खाली सी सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को इसको भी पैसे देने पड़ेंगे और ए को बी को भी देने पड़ेंगे गुडविल का अमाउंट। लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा और कैसे। टोटल गुडविल तो 60 है, पहले हम बी का शेयर निकालें। बी शेयर इन गुडविल टोटल 60 का 1/3 उसका हिस्सा है। 60 का 1/3 it comes to goodwill, which will be here 20,000। बी का शेयर कितना होगा 20,000। नॉट ओनली दिस मच बट सीज सेक्रीफाइस शेयर, सी का सेक्रीफाइस कितना है 1/9 सो 60,000 का 1/9 60,000 का 1/9 दैट कम्स टू 6667। ये भी अमाउंट, ये दोनों अमाउंट गेनिंग पार्टनर ए को पे करना पड़ेगा। सो लेट अस गो फॉर जर्नल एंट्री। कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, ए को पैसे भरने हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 26,667 टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना बी को देगा 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 6667। ओके, I mean to say in the case continuing partner is sacrificing, gaining partner will pay up to the point or level of sacrifice to that partner too. Okay, let us take one more sum. Okay, then you will practice with the illustrations and remaining questions. But अभी हम एक और करके फिर बाकी का आप होमवर्क करेंगे। Let us see. B, R, T, S are the sharing profit and loss this, and who retires here? B retires. Okay, and goodwill is appearing. Appearing means which ratio? Appearing old. All partners old ratio. Okay, at the time of B's retirement, goodwill is valued. Means ये कौन सी goodwill होती है? ये वाली हो जाएगी new. R, T, S का new ratio दिया है। When new and old doesn't match तो पहला स्टेप हम फाइंड ही गेन करते हैं। गेन करेंगे दैट विल बी न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कैसे और किस किस का है? डी तो चला जाएगा RTS, RTS। आर के लिए न्यू 1/5, 2/5, 2/5 लिफ्टिंग करना साथ में सबका न्यू, सबका माइनस सबका ओल्ड। ध्यान देना ओल्ड में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 है। इसका कितना है 3/10, इसका कितना 1/10, इसका कितना 2/10। क्योंकि फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आप चाहें तो उसको सर्कल करके रख सकते हैं कि उसका आप लिफ्ट नहीं करें। ओके, चलो देखो पहले में क्या होता है। दिस पार्टनर इज गेटिंग -1/10 सेक्रीफाइस हियर। दिस पार्टनर T, if you solve it comes to 3/10. This means gain. Again this partner 2/10. Again what? Gain. So they both are gaining. This partner is sacrificing. So sacrificing partner will also get the share. And they both are gaining in which ratio? 3:2. In this 3:2 proportion. Proportion of gain is among T and S. Gain is 3:2. T and S are gaining.
So let us see how will be the goodwill amount calculated in this case. So therefore, किसका शेयर? B's share in goodwill. B share in goodwill. B का कितना हिस्सा होगा? नया गुडविल 60 है, B का हिस्सा 4/10. 4/10 that comes to 24,000. Not only this much, but E1 जो सेक्रीफाइस कर रहा है R का, R's sacrifice share, that will be 60,000. Total goodwill into 1/10, that comes to rupees 6,000. ऐसा दोनों को मिलाएंगे, that means 24,000 plus 6,000. Total payment comes to 30,000. Okay, इन दोनों को ऐड करें तो इट कम्स टू 30,000. 30,000 कौन बेयर करेगा? विल बी बोर्न बाय T&S, those who are gaining. कौन सा रेशियो? 3, इसको 2 times, 3 times and 2 times बेयर करेंगे. That is 18,000 and 12,000 respectively. ऐसा ये दोनों पे करेंगे. ओके, चलो एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज. ओके, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देते हैं. फॉर्मेट आपको पता है. फर्स्ट वन, ओल्ड गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो सबको. बी कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, BRTS सबका टू गुडविल. गुडविल इज 20,000. 20,000 ओल्ड रेशियो में 8,624. 8,000, 6,000, 2,000, 4,000. B's capital, R's capital, T/S to goodwill account. Second entry, gaining partner account debit to sacrificing partner. Gaining कौन है? T और S. T's capital account debit, S capital account debit 12,000. टू किस किस को मिलेगा? B's capital account 24,000. To R's capital account 6,000. Okay, this way goodwill's various questions we have solved. Still you will do as homework what? Similar illustrations given in the textbook plus questions. So you practice out so that this concept is clear. तभी हम main sum कर सकेंगे. So now tomorrow we will continue with the remaining. Thank you.